Welcome class, I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain a chapter in class 12 and the name of this chapter is New Center of Power. Class, in this chapter we will going to discuss the four content: European Union, ASEAN, BRICS and SHARK. So in my previous videos we are looking about we already discussed about the European Unions. The European Union was established by Maastricht Treaty in 1992, and in the European Union today is near about 28 countries are the member. Class, or who are these members? Class, the member of European Unions are Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republics of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, and Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden. These are the 27 members in the present time in the European Union. Class. And Britain was Brexit in 2020. So now the current strength of the European Union is 27. Class. And after this, the next organization is the class ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. It was set up by 1967 by signing the Bangkok Declaration by the 5 members: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. And now this ASEAN is the fast growing economical organization. Class. And now class, our next topic is BRICS. Class, BRICS. Class, this organization BRIC, each word has a separate country, like B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, and S for South Africa. Class, actually these BRICS are founded in 2006. Class. In 2006, this BRICS was founded, and this BRICS was founded in 2006 in Russia. Class. The BRICS turned into BRICS. Starting में केवल BRICS था. Class. This was established by Brazil, Russia, India and China in 2006. Startingly it was known as BRIC only. 2006 में रशिया में इसका फाउंडेशन हुआ. बट आफ्टर दिस क्लास, जब इसमें साउथ अफ्रीका ऐसे ऐड हो गया, तो दिस ब्रिक जो है ब्रिक्स के नाम से जाने लगा. एंड साउथ अफ्रीका इसमें जो है 2009 में ऐड हुआ. ठीक है.
जब साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हो गया तो इसकी फर्स्ट मीटिंग 2009 में हुई क्लास। व्हेन साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया तो ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग 2009 में हुई क्लास। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स आर प्राइमरीली टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिकल बेनिफिट अमॉन्ग इट्स मेंबर। मतलब जो इकोनॉमिकल बेनिफिट हैं वो जो आपस के मेंबर्स हैं उसमें शेयर करना क्लास। बिसाइड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअली इक्वालिटी। इन ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हर इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन में ये भी ध्यान रखा है कि दे नॉट इंटरफेयर द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ वन अनदर। एक दूसरे की कंट्री में कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। देन म्यूचुअल इक्वालिटी, और आपस में इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करेंगे क्लास। द 11th कॉन्फ्रेंस of the BRICS conducted in Brazil in 2019। और इसका 11th कॉन्फ्रेंस जो है ब्राज़ील में 2019 में हुआ क्लास। 2019 में क्लास इसका 11th कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस क्लास इसका ब्राज़ील में हुआ। एंड दिस 11th कॉन्फ्रेंस इज चेयर्ड बाय ब्राज़ीलियन प्राइमरी प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो। जेर बोल्सोनारो was chaired this 11th conference class. The main objective of BRICS is to cooperate, एक दूसरे को कोऑपरेट करना और जो इकोनॉमिकल जो म्यूचुअल बेनिफिट है उसको एंजॉय करना। एक दूसरे के इसके लिए इन्होंने ये भी तय किया है कि एक दूसरे के इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे एंड इक्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा क्लास। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द क्लास South Asian Association for Regional Cooperation। And the short class South Asian Association for Regional Cooperation class. This organization SHARC was established in 1985 class. This SHARC organization was established in 1985 and their full form is class South Asian Association for Regional Cooperation. This was established in 1985 class, and this SARC have initially 7 members. These members are India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives। तो शुरू में क्लास 7 जो इसके कंट्री मेंबर थे, बट 2005 में अफगानिस्तान विल आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस समय करंट जो शार्क के कंट्री है इसमें इनकी स्ट्रेंथ जो है टोटल 8 हो गई है क्लास। एंड देखो साउथ एशिया के जो नेशन है ऑलवेज एक दूसरे से स्ट्रगल ही नहीं कर सकते, करते रहते हैं, बट दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। उन्होंने आपस में जो कोऑपरेशन है उसके इम्पोर्टेंस को समझा। दैट इज़ वाई दिस प्लेटफॉर्म
आसियान प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर देम, आसियान ने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें वो आपस में कोऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। तो शार्क इज़ अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय द साउथ एशियन स्टेट टू इवॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलैटरल मीन्स, ठीक है। इट बिगन इन 1985 और 1985 से ये काम करना शुरू किया क्लास। देखो बट जो शार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें उनमें आपस में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और इस वजह से जो शार्क है वो अभी सक्सेसफुली जो है वर्क नहीं कर पाया क्लास। नाउ जो शार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं दे साइन द साफ्टा, तो शार्क मेंबर्स साइन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दिस साउथ एशियन कंट्री साइन द साफ्टा एग्रीमेंट विच promised to formation of free trade zone for the whole साउथ एशिया, पूरे होल साउथ एशिया में फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा। देखो a new chapter of peace and cooperation might evolve in the South Asia if all the countries in the region allow free trade across the border। अगर साउथ एशिया के जो कंट्री आपस में फ्री ट्रेड अलाउ कर दें तो इस एरिया में एक नई शुरुआत हो जाएगी क्लास। दिस इज़ द स्पिरिट बिहाइंड द आइडिया ऑफ साफ्टा, और यही साफ्टा के पीछे जो उद्देश्य है। और ये एग्रीमेंट साफ्टा जो है 2004 में साइन हुआ क्लास। साफ्टा वाज साइन इन ईयर 2004 एंड कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006, और कब इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2006 में ये इफेक्ट में आया क्लास। तो साफ्टा वाज साइन, जो साफ्टा है 2004 में साइन हुआ एंड कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006, तो 1 जनवरी 2006 से ये इफेक्ट में आ गया। साफ्टा एम एट लोअरिंग द ट्रेड टैरिफ बाई 20% बाई 2007। ये साफ्टा का ये उद्देश्य है कि 2007 तक जो ट्रेड टैरिफ है उसको 20% तक कम कर देना है, ठीक है। तो साफ्टा एम एज लोअरिंग द ट्रेड टैरिफ बाई 20% इन 2007 तक जो ट्रेड टैरिफ है उसको 20% कम कर देना है। लेकिन जैसे अब इनके मेंबर्स कंट्रीज़ में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जैसे इंडिया को लोग कहते हैं कि इंडिया शार्क के थ्रू जो है अपना इस एरिया में डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है क्लास, कि साफ्टा इज़ द वे फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स थ्रू द कमर्शियल वेंचर्स एंड द कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्री। तो लोग कहते हैं कि भारत जो साउथ एशिया के जो अदर देश हैं उनके मार्केट में घुसना चाहता है। तो इंडिया का ये कहना है कि इंडिया थिंक दैट देयर इज़ द रियल इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर ऑल द साफ्टा मेंबर्स, ठीक है। तो बट इंडिया का कहना है कि अगर साफ्टा से जुड़ेंगे तो इनके हर एक मेंबर को बेनिफिट होगा क्लास, और and that a region that the trade more friendly will be able to cooperate better on social political issue पे भी आपस में cooperate हो पाएगा क्लास। Some in India think that SAFTA is not worth the trouble since India already has a bilateral agreement on Bhutan, Nepal and श्रीलंका। देखो हमारे इंडिया का पहले से ही नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ बायलैटरल अच्छे संबंध है, ठीक है।
इसलिए साफ्टा का कोई विशेष लाभ इंडिया को नहीं मिल रहा है क्लास। तो although India and Pakistan relations seem to be a story of endemic conflicts and violence, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस होते रहे हैं। देयर हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ एफर्ट टू मैनेज टेंशन एंड पीस। तो द टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग measures to reduce the risk of war class। देखो इस सार्क कंट्री is a very important organization for cooperation among the South Asian nation class। Welcome class। Today I am going to explain the next topic here। Today's 25 2022। Today's date is class। In this chapter we will start about the rise of Chinese economy। हम चाइना की जो राइजिंग इकोनॉमी है उसको डिस्कस करते हैं क्लास। चाइना इज़ आवर नेबरिंग कंट्री और चाइना जो है अगर हम 1950 के पहले देखें तो ही वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉलोनियल मास्टर ने उनको एक्सप्लॉइटेशन किया। बट in 1948 under the leadership of Mao, Chinese was come under the control of Communist Party और माओ के लीडरशिप में वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे जो पुरानी जो वीक मोनार्कियल गवर्नमेंट थी वो ख़त्म कर दी गई। एंड नाउ न्यू जो चाइना था 1948 के बाद he was start to work under the guidance of Mao and their concept of socialism and communism। स्टार्टिंग में चाइना ने जो है यूएसएसआर के जो इकोनॉमिकल मॉडल है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया, वेयर एवरीथिंग इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, जहाँ पर हर चीज़ राज्य के नियंत्रण में होता है क्लास, और everything is controlled and regulated by the state। After this class China's economy was start to revive, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ लगे। बट जो चाइनाज़ की ने यूएसएसआर की जो पॉलिसी अपनाई उसकी वजह से जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी या फिर जो भी लोगों की प्रॉब्लम थी बनी हुई थी। बट चाइना ने 1972 में अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना शुरू किया और चाइना ने सबसे पहले 1972 में 4 मॉडर्नाइजेशन किया। एंड दीज मॉडर्नाइजेशन अबाउट द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। in these four fields Chinese were adopt the modernization class। तो class the China have some great thing like a big population, big land mass। China was attached to the coastal area and they have a lots of resources available in their inland areas। China initially he was follow the model of USSR for their economic growth, but he was not got more benefit। Okay, China was start to in 1972 China was modernized their economy in the agriculture industry
technology and military, they start the four modernization class. And after this, in 1978, the leader Deng Xiaoping announced the open door policy class in 1978. In this open door policy, the China was start to reform their economy class. This open door policy, now the different nations were in welcoming in China कि बाहर के देश आएँ और चाइना में इन्वेस्टमेंट करें, और बाहर के देश आएंगे कंट्री तो चाइना की में टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएंगे, पैसे भी लगाएंगे। तो इस तरह से चाइना ने जो कैपिटलिज्म, अमेरिका का जो रास्ता था कैपिटलिज्म, उसको फॉलो करना शुरू किया। एंड ड्यू टू ओपन डोर पॉलिसी चाइना में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा, बाहर के कंट्रीज़ आकर के चाइना में पैसा लगाने लगे, टेक्नोलॉजी भी आने लगी, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद चाइना में कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों ही बाहर से आने लगी। इसके बाद चाइना ने अपनी चाइना फॉलो इट्स ओन पाथ इन द इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। इस तरह से उसने मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें फ्री कंपटीशन होगा, जो बेस्ट करेगा और बढ़िया करेगा वो ग्रोथ करेगा क्लास। तो चाइना ने जो है मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। देखो जिस तरह से रशिया यूएसएसआर ने जो है अपनी शॉक थेरेपी को अपना करके जो है जिस तरह से सोशलिस्ट कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हुआ, उसकी जगह पे चाइना ने पहले से इकोनॉमिकल रिफॉर्म के काम शुरू कर दिए थे। इसने सबसे पहले 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया। देन आफ्टर 1998 में इंडस्ट्रीज़ जो भी थे उनका प्राइवेटाइजेशन किया, ठीक है। तो उसके अलावा जो ट्रेड बैरियर्स थे, जो वो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको हटा लिया, ठीक है। जहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है वहाँ पर जो फॉरेन जो ट्रेडर्स हैं उनको इनवाइट किया गया, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी गई कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको तमाम तरह की छूट दी जाएगी। और तो इन चाइना द स्टेट प्लेयर कंटिन्यू टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप द मार्केट इकोनॉमी। चाइना में सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मार्केट इकोनॉमी को सेटअप करने में और ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी। उसने अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा इजी बनाए और बाहर के कंट्रीज़ को स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में तमाम तरह की छूट दी, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरह से क्लास न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी अडॉप्ट करने से चाइना जो है कि इकोनॉमी जो है स्टैग्नेशन से बाहर आई क्लास, और एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर देने से जो है रूरल एरिया में जो लोग थे उनकी इनकम बढ़ने लगी। अब इनकम बढ़ने से खर्चे कम है, इनकम ज़्यादा है, उनके पास सेविंग भी होने लगी क्लास। तो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो लोगों के पास सेविंग भी होने लगी, उनके पास रूरल इनकम भी बढ़ने लगे। एंड ड्यू टू दिस जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी ग्रो करने लगा क्लास, और इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्रीज जो रूरल एरिया में तो भी ग्रो करने लगी। तो द चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूड बोथ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट फास्टर रेट। इस तरह से चाइना में इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर दोनों ही बहुत फास्ट रेट से ग्रो करने लगा, और जो नए ट्रेडिंग्स लॉ थे और क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्लास, और चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब चाइना के पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि वो उसके पास इतनी जमा पूंजी है, इतना इनकम है, उनके पास स्टोर है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में इन्वेस्टमेंट करके
उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन आफ्टर चाइना 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बन गया और उसकी जो हिस्सेदारी जो वर्ल्ड में है ट्रेड में बढ़ने लगी क्लास।